A very good morning, class 8th. As I went through the video that I've sent you on Friday, the video was sent half because of network problem. So let's continue with our next topic, that is advantages of manure. So I have already cleared you the meaning of manure and fertilizer, and today we're going to start the advantages of manure कि manure के खाद डालने के क्या advantages है. So it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. Third is increases the number of soil friendly microbes. Number 4, improves the texture of the soil. Number 5, adds humus to the soil. Number 6, it is not expensive and can be easily prepared from waste in the farm. Number 7 is does not cause water pollution. So if we talk about manure बेटा, तो manure में मैंने आपको क्या क्या examples दिए थे? Animal excreta and sewage waste, weeds, dry leaves. When we are going to prepare it into a compost, अगर हम उसको compost बना देंगे, खाद बना देंगे, तो ये क्या है? Organic खाद है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्रॉप्स वगैरह में, अपने फील्ड में डालने के लिए. तो इसके फायदे क्या क्या है कि एक तो ये हमारे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की जो वो अच्छी कर देता है, वाटर रिटेन करता है काफी देर तक सॉइल भी, और पोरस हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी अच्छा हो जाता है, और इंक्रीज द नंबर ऑफ जितने भी सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं जो सॉइल के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो न्यूट्रिएंट को बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, उसको इंक्रीज करता है. सॉइल के टेक्सचर को भी चेंज कर देता है बेटा. प्लस एड ह्यूमस टू द सॉइल, और इसमें खाद की तरह भी काम करता है जो उसको फर्टाइल बनाता है. और दूसरी चीज, बाजार से खरीदा नहीं जाता है मैन्योर बेटा, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं हम घर में काउ डंग की हेल्प से. और इवन ये वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करता है, जैसे एज कंपेरेटिवली अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो वो वाटर को पोल्यूट करते हैं. कैसे कि वो washed off हो जाते हैं during the time of irrigation and rainfall, and when they reach water bodies like river and lakes, this cause water pollution. Okay, so in your book there is a difference between fertilizer and manure. Please go through this. Apart from this, I will give you some example of fertilizers as well, like urea, ammonium phosphate, super phosphate, potash, nitrophosphate. All these are some of the examples of your fertilizers, and these you will going to write in your notebook as this question answers they have asked you in your exercise also. So the next topic which is practiced in agriculture is irrigation. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of the flowers, fruits and seeds of the plant. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% of water, that we know. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. This is very obvious, and you are studying this in from class 3rd only, that all living beings needs water, and that is why for proper growth and development of a plant we need water. और time to time पानी डालते रहना चाहिए बेटा हमें. So plants 90% तो plants में water होता है, plus seed germination के लिए भी. हम सोइंग बेटा ड्राई कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको पानी की जरूरत होती है फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन. सो इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन टर्म, व्हाट इज इरिगेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ओके, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. सो बेटा टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि पहली बात तो नेचर ऑफ द क्रॉप प्लांट, कि क्रॉप का नेचर कैसा है, उसको ज्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए. नंबर बी, नेचर ऑफ द सॉइल कैसा है, क्या वो क्लेई सॉइल है, क्या वो सैंडी सॉइल है, क्या वो लूमी सॉइल है. दिस यू हैव डन इन क्लास 7th. और नंबर सी, सीजन व्हेन द क्रॉप्स इज ग्रोन, क्या हम रेनी सीजन में लगा रहे हैं तो क्या उस क्रॉप को पानी देते रहना जरूरी है. अगर ड्राई कंडीशन में है तो उस क्रॉप को हमें टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए. तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम कोई भी कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप की. नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. हमें पानी कहाँ से मिलता है?
for watering the crops. These are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. Okay. So पहले के टाइम में बेटा इरिगेशन कैसे हुआ करता था? पहले लोग जो थे कैटल का इस्तेमाल करते थे, ह्यूमन लेबर लगता था. ये सारे कुछ मेथड से मैं आपको एग्जांपल दूंगी जो ट्रेडिशनली जो ह्यूमन को भी एंगेज करते थे और जानवरों को भी एंगेज करके रखते थे. प्लस ये सस्ता भी है. इट इज चीपर बट लेस एफिशिएंट. ओके. सो द एग्जांपल्स आर लाइक मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, धेकली and rahat. These are some traditional methods. Please underline it in your book. These are some examples of the traditional method of irrigation जो कि बहुत ही सस्ता था और less efficient था. इसीलिए लोगों के पास कोई options भी नहीं था. पर जैसे जैसे साइंस की एडवांसमेंट हुई, फार्मर्स को भी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चला और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हुआ. उसमें है स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर इज यूजुअली स्प्रेड ऑन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर्स. इसमें बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं जिनमें नोजल्स लगे होते हैं, रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं ऑन द टॉप ऑफ इट, द पाइप्स, जिसको हम स्प्रिंकलर्स कहते हैं. द स्प्रिंकलर्स आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स एंड पंप्स आर फिटेड इन दिस सिस्टम फॉर लिफ्टिंग द वाटर. और वाटर पंप्स लगाए जाते हैं ताकि पानी उसमें हाईली लिफ्ट हो सके. आफ्टर दैट वाटर जो पंप है इसमें पानी का प्रेशर जो होना चाहिए वो काफी फोर्सफुली होना चाहिए ताकि वो जो स्प्रिंकलर है वो रोटेट कर सके, नोजल रोटेट कर सके. और जब वो चलना शुरू करता है, इट स्टार्ट वर्किंग, देन द वाटर यूजुअली गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप लाइक अ रेन. So sprinkler is very useful for sandy soil or for the uneven land where sufficient water is not available. Okay. So the next thing which I will talk about is, so here where we were in the sprinkler irrigation, isn't it? So in sprinkler irrigation, perpendicular जैसे मैंने आपको explain किया, और वो पानी जो होता है वो रेन की तरह मूव करता है और क्रॉप में जाता है. ठीक है. The second system is very good and very important also in the places where there is water scarcity, that is drip system. बेटा इस सिस्टम में क्या होता है, water पानी falls drop by drop just at the position of the roots and so it is called a drip system. Best technique for watering fruit plants, gardens and trees. So let me tell you how it will going to work. That there is a holes in the pipe which allow water to fall drop by drop just at the position of the roots only. Okay, and water is also not wasted. The system also saves water. ये टेक्निक जो है बेटा वाटर को सेव भी करता है, प्लस लेस इवेपोरेशन भी होता है, और एक तरीके से इट इज अ बून, ये एक वरदान है ऐसी जगह में इस्तेमाल करने के लिए जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है. Alright, so this is all about our drip system, and next we will talk about a very important, that is weeds and weeding. बेटा weed क्या है, undesirable plants. ठीक है, जिनको कि रिमूव करना जरूरी होता है क्योंकि वो क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो कर जाते हैं. सो ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स कहते हैं, और इनके निकालने की टेक्निक को हम वीडिंग कहते हैं. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. So tilling before sowing of crop help in uprooting and killing of the weed which may then dry up and get mixed with the soil. So there are some example of the weeds, जैसे कि कुछ नाम है चौलाई, जिसको चौलाई का साग आपने सुना होगा जो हम खाते भी हैं बेटा, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एमरैंथस. बथुआ का साग भी खाते हैं काफी लोग और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चीनोपोडियम. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द वीड्स. बेटा ये तो हेल्पफुल वीड है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं. कुछ पॉइजनस भी होते हैं जो अगर प्लांट्स या एनिमल्स को अगर वो खा ले तो उनके लिए जहरीला होता है और वो उनकी डेथ भी हो सकती है. सो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं कुछ वीड्स तो जो पॉइजनस हो सकता है, इसीलिए उनको बहुत ध्यान से और बहुत जरूरी है उनको रिमूव करना. नेक्स्ट है वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स. बेटा इन तीनों टर्म्स को आप ध्यान में रखिए. वीड्स होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट, उनके रिमूवल की टेक्निक को बोलते हैं हम वीडिंग, और केमिकल्स जो इस्तेमाल करते हैं हम उसको बोलते हैं वीडीसाइड्स. जैसे इसका एग्जांपल है 2,4-D,
बेटा इसका फुल फॉर्म है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, सो जब ये स्प्रे करते हैं हम फील्ड में, ये वीड्स को किल कर देता है बिना क्रॉप को डैमेज करे। पर बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई भी वीडीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको पानी में मिक्स करें ताकि आपका एक करेक्ट प्रोपोर्शन पता हो जो आप उन फील्ड्स में स्प्रे कर सके, जो वीड्स को किल करने के लिए एनफ है। नेक्स्ट टेक्निक इफ वी टॉक अबाउट, बेटा वीडिंग में मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ बेटा, बायोलॉजिकल मेथड भी होता है। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो वीड्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। बायोलॉजिकल कंट्रोल इज वीडिंग का कैसे होता है, प्रिकली पेयर कैक्टस जिसको अपनशिया बोलते हैं, बाय यूजिंग अ कोकोनियल इंसेक्ट। इस कोकोनियल इंसेक्ट को जब हम इस अपनशिया के ऊपर यूज करेंगे तो वो जितने भी वीड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसको वो किल कर देता है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, दैट इज आवर हार्वेस्टिंग। सो हार्वेस्टिंग टेक्निक में क्या होता है बेटा आपके, इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। So the process of cutting and gathering of crop after its maturation is called the harvesting। ठीक है, कटिंग ऑफ क्रॉप को, जिसको उसके मेच्योर मतलब पकने के बाद जब हम उसको वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड एंड इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी। So this is carried out with the help of a machine called combine। बेटा पहले के लोग कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ अ सिक्कल एंड अ मैनुअल थ्रेशिंग, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल आता था और देन दे जितने भी उन्होंने क्रॉप्स जो होते हैं उसको पकड़ के व्हाट दे डू, दे यूजुअली उसको एक हार्ड चीज में उसको जोर जोर से मारते हैं, जिससे कि सारा जो क्रॉप है, जो सीड है, वो उसके स्टॉक से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। बट नाउ डेज with the science technology advancement, we are blessed with the farmers are blessed with a machine called combine, where the farmers don't have to do threshing manually or with the help of a sickle. It has been done with the help of this machine called combine, and farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing also. Winnowing you have done in class 6 beta, isn't it? So combine machine dual job करता है, 2 जॉब करता है बेटा, हार्वेस्टिंग भी करता है और थ्रेशिंग भी करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, कंबाइन हार्वेस्टर। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। आजकल बेटा विनोइंग के लिए भी एक मशीन आई है जिसमें कि seed being heavier falls straight to the ground, that you already know, and the light husk and hay are blown a little farther away by the wind, and winnowing is done usually with the help of this winnowing machine. All right, so the next and the last topic of this is storage, कि storage हमें कैसे, बहुत जरूरी है बेटा कि जब आप थ्रेशिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद थ्रेशिंग करते हैं, फिर विनोइंग करते हैं, अब हमारे पास क्या आया है, वी यूजुअली गेट अ क्रॉप। अब इसकी स्टोरेज बहुत जरूरी है। सो स्टोरेज ऑफ storage is an important task. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganism। और जो फ्रेश क्रॉप होती है उनमें काफी मॉइस्चर होता है। If freshly harvested seeds are stored with drying, they may get spoiled or attacked by organism, losing their germination capacity. So farmers store grains in jute bags of metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves, neem का पत्ता, are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grain in big godowns, specific chemicals treatment are required to protect them from pests and microorganism. So दिस इज हाउ स्टोरेज इज बिन डन। लार्ज स्केल में स्टोरेज हमेशा बेटा हम इसी टेक्निक से करते हैं कि उसको ड्राई करते हैं सन में टू रिड्यूस द मॉइस्चर। और कमर्शियल स्केल में हाउएवर मैकेनिकल ड्रायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे गर्म हवा जो होती है उन सीड्स में डाली जाती है, जो कि इंसेक्ट्स को
से बचाता है सीड्स को, पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है,